السلام علیکم یا علیہ السلام کی مدد. امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. تو جیسے کہ مومنین آپ جانتے ہیں آج 5 محرم ہو گئی ہے اور آج کا دن منسوب ہے شہزادگان جناب اون محمد علیہ صلاۃ والسلام جو کہ شہزادے ہیں سیدہ زینب سلام اللہ علیہ ان کے. تو آج کا دن ان سے منسوب ہے ان شہزادوں سے. تو آج کی مجلس کے اختتام پر تابوت شہزادے اون محمد برآمد ہوں گے. تو ہم جا رہے ہیں صبح کی مجلس کے لیے عزا خانہ شبیر امام بارگاہ مرکزی امام بارگاہ جو ہے فیصل آباد کا. تو آج ہم لیٹ ہو گئے ہیں تھوڑا سا کہ آج ہمیں 6:40 یہیں گھر ہی ہو گئے نکلتے ہی. اور ایک چیز کی معذرت کرنی ہے آپ سب سے کہ میں ایک کل کے ولاگ کے بھی شوٹ نہیں کر سکا. رات کی مجلس کی وہ تھوڑی سی مصروفیات تھیں. ہمارے یہاں پر ایک بابا قمر شاہ صاحب ہیں ان کا انتقال ہو گیا تھا. تو مولا ان کے درجات بلند فرمائے. تو اس کی وجہ سے ذرا کچھ بارگاہ کے امور سر انجام دینے تھے. ان مصروفیات کی وجہ سے میں جو بارگاہ کی مجلس تھی عشرے کی ہمارے ادھر منصور آباد کی اس کو شوٹ نہیں کر سکا. اس کی معذرت. باقی کا جو بلاگ ہے وہ آپ کو موصول ہو جائے گا. تو باقی اب چلتے ہیں مرکزی امام بارگاہ. تو وہاں جا کر پھر آپ کو مناظر دکھاتے ہیں. تو مومنین ہم لوگ پہنچ چکے ہیں مرکزی امام بارگاہ عزا خانہ شبیر. تو بس اب چلتے ہیں ممبر کے قریب. آج ہم لیٹ کافی ہو گئے ہیں. ہوپ سو کہ ہمیں کوئی ممبر کے پاس جگہ مل جائے بیٹھنے کے لیے. قبلہ ذاکر مزین عباس کاظمی صاحب نے تو خطاب کر لیا. اب قبلہ ماجد رضا عابدی صاحب کا ہی وقت ہوا جا رہا ہے. بس چلتے ہیں ممبر کی طرف. پھر باقی آپ کو بتاتے ہیں ادھر جا کے. تو اس کی ذات خدا ہو جاتی ہے. تو ایک کام اللہ نے اور اپنی طرف منسوخ کیا اور کہا اے نبی تم جب یتیم ہوئے تو ہم نے تمہیں پالا. تشبیہ دو حدین ہیں جس سے اللہ کو پڑے رکھو. یعنی نہ وہ کسی سے تشبیہ دیا جا سکتا ہے اور نہ کائنات کی کوئی جگہ اس سے خالی مانی جائے. کوئی جگہ اس سے خالی نہیں. تعطیل کا مطلب کیا ہے؟ تعطل کا مطلب کیا ہے؟ وہ یہودیوں والا عقیدہ نہ رکھنا کہ اللہ نے 6 دنوں میں آسمان و زمین کو خلق کیا اور اس کے بعد وہ آرام کر رہا. یہ ہے تعطیل. یہ ہے تعطیل. ایسا نہ سمجھنا. اور دوسری تعطیل کیا ہے کہ کسی بھی مقام کو اس سے خالی نہ سمجھنا. وہ ہر جگہ اور ہر وقت موجود ہے. وہ ہر جگہ اور ہر وقت موجود ہے. کوئی اس سے انکار نہیں کر سکتا کہ وہ ہر جگہ ہر وقت موجود ہے. ہر جگہ اور ہر وقت موجود ہونے والا, ہر جگہ اور ہر وقت موجود ہونے والا. عجیب بات ہے کہ لا زمان بھی ہے لا مکان بھی ہے. سلامت رہے. جو ہر جگہ اور ہر وقت ہے. بات پہنچی کہ نہیں؟ مجھے بتاتے جائیں کہ جگہ کا بھی محتاج نہیں ہے اور وقت کا بھی محتاج نہیں ہے. میں نے محتاج لفظ کم کیا. لا زمان وہ زمانے سے بھی دور ہے. یعنی اس پر زمانے کا اطلاق نہیں ہوتا, اس پر وقت کا اطلاق نہیں ہوتا. لا مکان وہ مکان سے بھی دور ہے, پرے ہے. اس پر مکان کا بھی اطلاق نہیں ہوتا. اس لیے کہ زمانہ بھی مخلوق ہے اور مکان بھی مخلوق ہے. زمان بھی مخلوق ہے اور مکان بھی مخلوق ہے. جیتے رہے آپ. سلامت رہے. کس منزل پر میں آپ کو لے آیا. یہ وہ توحید ہے جو آل محمد سے میں نے سیکھی. لا زمان لا مکان اور ہر جگہ اور ہر وقت. ہر جگہ موجود ہر وقت موجود. ایسا نہیں ہے کہ کبھی کسی جگہ ہوتا ہے اور کبھی نہیں ہوتا. پہلے تو اس کا اقرار کریں. ایسا تو نہیں ہوتا کہ اللہ کبھی کسی جگہ ہے اور کبھی کسی جگہ نہیں ہے. اگر میں نے کہہ دیا کہ اللہ نے ابھی یہاں جلوہ دکھایا تو اس کا مطلب ہے اس سے پہلے جلوہ نہیں دکھا رہا تھا. اور جس میں تغیر آ جائے وہ اللہ نے کا خالق ہے اور مکان کا خالق ہے. ہر جگہ کا خالق ہے اور ہر زمان کا خالق ہے.
रोकता हूं मैं आपको। कुछ सिफात, दो तरीके की सिफात पर हमारे उलमा ने बात की है कि आइमा से अक्स करके कि अल्लाह के दो किस्म के सिफात हैं, एक है सिफात सुबूदिया और एक है सिफात सल्बिया। सिफात सुबूदिया वो कि जो उसमें मौजूद हैं, वो लाखों करोड़ों अरबों हो सकती है, लेकिन 8 पर उन्होंने इत्तेफा किया कि जो हमारी जरूरत के तहत है, जो हमारी समझ के तहत है, जो हमारी अक्ल के तहत है। Few moments later. मोहम्मद जमीन पर गिर है। ज़ैनब ने कहा अब क्या हुआ? क्या दोनों जख्मी होकर जमीन पर गिर गए। वहां से आवाज दी, मामो सलाम, मामो सलाम। इधर से अब्बास, इधर से हुसैन, दोनों भाई चले, फौजों को भगाते हुए चले। हर लाशे पर हुसैन को जंग करना पड़ी ताकि लाशा महफूज वापस आ जाए, मक्तल में रखा जाए। फिर जंग की, फौजों को भगाया। दोनों बच्चों को जख्मी हालत में जमीन पर पाया और उनके पहलू से नेजा पार हो चुका था। का और नेजा पार हो चुका था, मोहम्मद के सीने से नेजा पार हो चुका था। आखिरी दम था, उखड़ रहा था। पेशानी भी जख्मी, रुखसार भी जख्मी, बाजू भी कटे हुए, बाजुओं पर भी जख्म, गोश्त लटक रहा था बाजुओं का, जा बचा, खून बह रहा था। दोनों बच्चे जमीन पर तड़प रहे थे। एक भाई को हुसैन ने उठाया, एक भाई को मोहम्मद ने उठाया। बीबी फिजा ने कहा, शहजादी आपके बच्चे आ रहे हैं, जख्मी हैं, दम उखड़ रहा है, जख्मी बच्चे आ रहे हैं। एक बार ज़ैनब ने कहा, अमीर अनीस ने लिखा कि ये न कहो दूल्हा वालों की सदा ज़ेरे कनात आती है, कैसे लाशें मेरे बच्चों की बारात आती है, कैसे लाशें मेरे बच्चों की बारात आती है। अरे मेरे बच्चे दूल्हा बन गए, उनसे शहादत से शादी हो गई, मेरे बच्चों का ये खून नहीं है, ये चेहरे पे सेहरा है। एक बार बच्चों के लाशें आए, जख्मी बच्चे हैं, लाशें लाके दोनों के जिस्म लाके हुसैन ने करबला की खाक पे रख दी। बीबी आ गई, बीबियों ने मातम शुरू किया, बीबियों ने बात नहीं करेंगी। एक बार कहा, देखो ज़ैनब कहाँ है? बीबी फिजा दौड़ती हुई आई, कहा बीबी ज़ैनब अपने खैमे में है। हुसैन खैमे ज़ैनब में गए तो देखा ज़ैनब सजदे में है और आवाज दे रही है, परवरदिगार तेरा शुक्र है, परवरदिगार अल्हम्दुलिल्लाह, तेरा शुक्र, तूने मेरी कुर्बानियों को कबूल किया। ज़ैनब आ गई, अपने दोनों बच्चों को सीने से लगा लिया, दोनों बच्चों का लहू ज़ैनब की चादर पर आ गया। कभी कौन के रुखसार चूमे, कभी मोहम्मद के रुखसार चूमे और चुम कर बालों पे हाथ फेर कर कह रही थी, सलामत रहो मेरे बच्चों, तुमने मेरी इज्जत रख ली, बच्चों में तुम्हें दुआ दे रही हूँ। अब मैं अपनी माँ के सामने सुरखरू हो जाऊंगी और जब यहाँ से जाना तो अम्मा ज़हरा को हमारा सलाम कहना, नाना रसूल अल्लाह को हमारा सलाम कहना। बच्चों की आंखें बंद हो गई, कोहराम बर्पा हो गया। हुसैन ने लाशें उठाए, मक्तल में रख दिए। ज़ैनब को एक निगाह देखा, ज़ैनब की आंखों में आंसू नहीं थे। ज़ैनब और मोहम्मद को नहीं रोई, इसलिए कि ज़ैनब नहीं चाहती थी कि हुसैन के सामने ज़ैनब का ये तासुर आए कि ज़ैनब एक लम्हे के लिए भी टूट नहीं, ज़ैनब एक लम्हे के लिए भी टूट नहीं। छिन गई चादर, नहीं रोई ज़ैनब, लुट गया सामान, नहीं रोई ज़ैनब। और मोहम्मद के सर नो के सीना पर आ गए, नहीं रोई ज़ैनब। बाजार आ गया और मोहम्मद को नहीं रोई, दरबार आ गया और मोहम्मद को नहीं रोई। 1 साल कैद खाने में रही, सिर्फ यही कहते रही, हाय हुसैन, हाय मेरा भाई हुसैन, हाय मेरा माजाया हुसैन। कैद खाने की का अरसा खत्म हुआ और मोहम्मद को नहीं रोई। सर आ गए, मजलिस में सर आ गए, सबको रोई, तो सर नन्हे एक तरफ रखे रहे। शाम की औरतों ने पूछा, क्या इन बच्चों की मां मर गई है, कोई इनको रोने वाला नहीं है? ज़ैनब ने कहा, इनकी मां मैं अपने बच्चों को नहीं रोऊंगी, मैं फातिमा के बेटे को रोऊंगी, मैं फातिमा के बच्चों को रोऊंगी। ना रोई ज़ैनब, रिहा हो गई, ना रोई ज़ैनब। 40 को करबला पहुंच गई, ना रोई और मोहम्मद को। 40 से करबला से रुखसत हुई,
भाई की कब्र को आखिरी सलाम किया और न मोहम्मद को ना रोई। आ गई मदीने वापस, दिन भर आए मेरा भाई, आए मेरा भाई, आए मेरा माँ जाया, आए करबला कहती रही और न मोहम्मद को ना रोई। एक बार कई दिन गुजरे तो अब्दुल्लाह इब्न जाफर ने इमाम ज़ैनुल आबिदीन से कहा कि ऐ मेरे वक्त के इमाम, कुछ देर के लिए बीबी ज़ैनब को जरा घर भेज दीजिए, मैं उनसे कुछ पूछना चाहता हूँ। इमाम वक्त का हुक्म आया, कहा कि बेटी ज़ैनब, आपको अब्दुल्लाह इब्न जाफर बुला रहे हैं, जरा घर चली जाइए। अब जो ज़ैनब घर में आई, एक बार घर का दरवाजा खुला, अब तक न रोने वाली ज़ैनब की निगाह जब और मोहम्मद के हुजरों पर पड़ी, बेख्तियार चादर फेंके, हाथ पलट करके कहा, और मोहम्मद माँ आ गई, बेटा सलाम। कौन बचड़ा माथुरियों को जगह दे देंगे, थोड़ा सा पीछे पीछे ले ये देखिए ताबूत माशाल्लाह से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बहुत ही खूबसूरत ताबूत ये पुराना का ये छोटा काबुल है। जी तो मोमिनीन किराम मजलिस अज़ा मुकम्मल हो चुकी है, चूँकि आज ताबूत बरामद हुए शहज़ादगान जनाब मोहम्मद अलैहिस्सलाम के, जो कि फ़र्जंद हैं सैयदा ज़ैनब आलिया सलामुल्लाह अलैहा और जनाब अब्दुल्लाह इब्न जाफ़र तैयार अलैहिस्सलाम। आज का दिन उनसे मंसूब था, उनके शबीहात बरामद हुई ताबूत की। तो अब चलते हैं घर और उसके बाद फिर इंशाअल्लाह आपको शाम की मजलिस के मनाज़िर दिखाएंगे। आज एक और जगह दोपहर में जाएंगे जहाँ पर शबीह सुलझना की ज़ियारत होगी, तो उसके बाद फिर इंशाअल्लाह आपको बाकी भी दिखाएंगे। 2000 years later. जी तो मोमिनीन अब हम जा रहे हैं मरकज़ अपने इमाम बारगाह मजलिस अज़ा पढ़ने के लिए, तो उधर जाकर फिर आपको बाकी मनाज़िर दिखाते हैं। मैं घर से निकल रहा हूँ तो इंशाअल्लाह बारगाह पहुँचेंगे। कि आप इसको सुनने के लिए आ गए, ये पता नहीं कौन पढ़ रहा है, अब हम इसे बैठ के सुने और हम फिर आ गए हैं तो बाद में बैठेंगे जब कोई आपके पे आ जाएगा। तो इमाम रज़ा बादशाह फरमाते हैं कि खुदा का शुक्र अदा किया करो कि हमने तुम्हें ज़माने की आवारा गर्दियों से बचाकर अपना जिक्र सुनने के लिए बुला लिया। खुदा का शुक्र अदा करो कि हमने तुम्हें ज़माने की आवारा गर्दियों से बचाकर अपने जिक्र सुनने की तौफीक अता की। तो इसमें इंसान का कोई कमाल है, तलबियत सिया जो हर बंदा नहीं कहता, जिस पर 12 बार सैयदा का कर्म होता है, बंदा बन सकता है। अब आपने इस ज़ात के तदीब की तारीफ जी तो व्यूवर्स मजलिस अज़ा पढ़कर मैं घर आ गया, तो अब निकल रहे हैं कल 6 मुहर्रम में। तो कल है हसन भाई के कदीमी जुलूस जो मेरे मामू के यहाँ होता है, तो उससे हाथ में मजलिस होगी और उसके मजलिस अख्ताम पर शबीह सुलझना और के बारे जनाब अस्कर अलैहिस्सलाम बरामद होगा और मुल्क भर की मातमी संगतें जो है वो तशरीफ़ लाएंगी। तो लाहौर के जितने भी हमारे व्यूवर्स हैं उनसे दस्त बदस्त गुजारिश है कि सब लोग शिरकत करें जाफरिया कॉलोनी लाहौर में जुलूस अज़ा में, ताकि आज़ादी को उनके बेटे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का पुरसा पेश किया जा सके। तो हम लोग घर से निकले थे 10 बजे, मैं पढ़ के फ्री हुआ तो मैं घर जाऊँ 10 बजे मेंबर छोड़ा है, तो उसके बाद मैं 10:05 तक घर आ गया। तो कई बार का मेरे घर के पास ही मैंने आपको बताया। उसके बाद हम लोग जल्दी से टर्मिनल पहुँचे हैं, तो 10:30 वाला टाइम था, तो उसमें हम लोग आ गए, हमें टिकट मिल गई थी। तो हम लाहौर के लिए निकल रहे हैं, तो इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल 6 मुहर्रम के ब्लॉग में। तब तक दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।